Good evening, ladies and gentlemen. This is a scene from a class. And now we will see the actions inside the class. So the picture suggests us from 1 to 30, there are actions. So I will give you what are the actions, and after that you will see the picture and try to speak these actions. The first one is stand up. तो खड़ा होने के लिए जब भी हम किसी को कहेंगे तो बोलेंगे stand up. Go to the board. Second action है बोर्ड के पास जाओ, तो हम कह सकते हैं go to the bed. ऐसे ही होगा write your name, अपना नाम लिखो. Erase your name, अपना नाम मिटा दो. Sit down, नीचे बैठ जाओ. या फिर अच्छा सेंटेंस है take your seat, अपनी सीट ले लो. 6th नंबर पे हम कह रहे हैं open your book. Read page 8, study page 8. 9th पे हम कह रहे हैं close your book, put away your book, अपनी बुक दूर रख दो. Listen to the question, आराम से क्वेश्चन को सुनो. Give the answer, sorry, raise your hand, अपना हाथ खड़ा करो. 13th पे कह रहे हैं give the answer, जवाब दो. 14th पे हम कह रहे हैं work in groups, ग्रुप्स में वर्क करो. फिर 15th पे हम कहते हैं हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करो. सो लेट्स सी द पिक्चर एंड ट्राई टू सी. Practice this classroom action. So what is the first action? Stand up, go to the board, write on the board. Now we say erase from the board. And what is that? Sit on the chair. Now read your book, study your book, write into your notebook. Now open your book or close your book. Now in 10th, so 10th, the 10th number says put away your book, अपनी किताब दूर रख दो. Close your book, अपनी किताब बंद करो. So how many actions can you remember? So Kshama ma'am, do you remember these words? So will you tell me how will you instruct in your class? Suppose you are a teacher, so say to the students. Okay, sir. I have to start, sir. Yes. Thank you, sir. I'm gonna tell you action. Take your good time. Okay. First one is stand up. Second one is go to the board. Very good. Third one is erase to the board. Fourth one is sorry. Third one is write in a board. Fourth one is erase on a board. Fifth one Erase. is down. Sit down. Very good. Down. Sixth one is read your book. Read your book. Seventh one also read this book. Eighth one is open your book on page number 8. Good. Ninth one is close your book. Good. 10th one is inside your book. Put away your book. Yeah, put your book under the table. Put your book under the table. Very good. 11th one is 11th one. Let's see and 11th try one to remember. Listen to the question listen to the question. and raise your hand. 10th one is raise your hand. Give the answer. Give the answer. 14th one is work Work. in groups. Good. 15th one is help each other. Nice. So now we will see again the picture and try to say, listen to the questions. Listen to the question. 12th one. Yes, sir. No, 11th, 12th. We will repeat these things. What is 11th one? 11th one is listen the question. Listen to the question. Listen के साथ to add कर देना है हमें. Listen to. Okay, sir. Listen to the question. Yes. And 12th one is raise your hand. Good. 13th one is 13th one is sir, I Ask don't the know question. 13th.
Let's see. If you do not remember, we can see. Give the answer. Give the answer. Yes. 14th one is group the work. Work in groups. Work in groups. Very good. And 15th one is Discuss each other. discuss each other. Nice. Each other. So now, can you tell about 1 to 15? Okay, sir. I will try. Try your level best. First one is stand up. Second one is go to the board. Third one is write in a board. Fourth one is erase in a board. Fifth one is sit down. And sixth one is read the book. Seventh one also read the book. It is And study the eighth one book. is One is read. it is a study the book. Yes. Seventh one is study the book. Study the book. Eighth one is page number. Open your page number 8. Open your book Page, on page number 8. open your book on page number 8. Good. Ninth one is close your book. 10th one is book. Put your book in the bench. Yeah, Yes. in Under the desk. bench. Put your book under the bench. या फिर put away your Under- books. अपनी किताबें दूर रख दीजिए. Put your book under the bench. Yes. 11th one is listen to the question. Nice. 12th one is raise your hand. Good. 13th one is Give the answer. give the answer. Okay, sir, give the answer. And 14th one is work Work in group. That's all about it, sir. Fantastic. Now we want to Work change in group. something. From the 16th, we want to change. And do you do your homework? अपना homework करो. फिर कह रहे हैं bring in your homework. Bring in your homework. Go over the answers. Bring in का मतलब अपना homework दिखाओ, लेके आओ. Go over the answers. Answers को पूरा करो. Correct your mistakes. Hand in your homework. अपने homework में मदद करो. Hand in your homework. अगला हो रहा है टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर. एक पेपर बाहर निकालो. पास आउट द टेस्ट. टेस्ट को पास आउट करो या आगे पहुंचाओ. आंसर द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस के जवाब दो. चेक योर आंसर्स. अपने जवाब चेक करो. कलेक्ट द टेस्ट. जो टेस्ट सीट है उनको कलेक्ट कर लो. लोअर द शेड्स. पर्दों को नीचा कर दो या फिर जो शेड लगी हुई है उनको नीचा कर दो. टर्न ऑफ द लाइट्स. लाइट्स को बुझा दो. टर्न ऑन द प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर को ऑन कर दो. वॉच द मूवी. मूवी देखो. एंड टेक नोट्स. और नोट्स लो. तो इस तरीके से हम करेंगे डू योर होमवर्क 16 नंबर पे. फिर क्या करेंगे डू योर होमवर्क. फिर क्या करेंगे अगला वर्ड है ब्रिंग इन योर होमवर्क. लाओ अपना होमवर्क ले आओ. 18 नंबर पे कहेंगे गो ओवर द आंसर्स. सारे आंसर्स एक साथ देखो या पढ़ो. करेक्ट योर मिस्टेक्स. अपने मिस्टेक्स सुधारो. हैंड इन योर होमवर्क 20 नंबर पे. हैंड इन योर होमवर्क. अपने होमवर्क को मुझे दे दो. 21 टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर. क्या करना है एक पेपर बाहर निकाल लो या नोटबुक से कोई भी पेपर बाहर निकालते हैं तो बोलेंगे टेक आउट. 22 पे कहता है पास आउट द टेस्ट. ये टेस्ट है सबको बांट दो या पास कर दो. पास आउट. 23 पे कह रहे हैं आंसर द क्वेश्चंस. जितने भी क्वेश्चंस है उनके आंसर्स करो. इजी. Yes, sir. कहाँ गए बैक वर्ड टू वर्ड.
Well, Excuse me, sir. 24th. Yes. Have you no time? So हम अपने क्लास को आगे भी कर सकते हैं, कल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप कहीं बिजी हैं तो। ना, बिजी तो रोज ही रहेंगे, नो प्रॉब्लम. तो अगर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं सर, बिकॉज आई एम अलोन, तो Okay, okay. You are saying that I am single today. So we will record it and tomorrow we can check it. So आज हम थोड़ा लेंगे, पर जितना है उतना ले लेते हैं. ठीक है सर। So we will be regular. Otherwise, what happens if we take a leave for one day, then leave for every day? ओके सर। Don't worry. So हमने कहा चेक योर आंसर्स, अपने आंसर्स को चेक करो एंड कलेक्ट द टेस्ट. तो एक बार फिर से देखते हैं, देखिए क्या क्या आ रहा है. सबसे पहला क्या है? डू योर होमवर्क. फिर क्या करेंगे? ब्रिंग इन योर होमवर्क. गेट ओवर योर होमवर्क. फिर क्या करेंगे? करेक्ट योर मिस्टेक, करेक्ट योर मिस्टेक। यस, करेक्ट योर मिस्टेक्स. एंड 20th पे ब्रिंग इन योर होमवर्क. ऐसा ही कुछ है, या हैंड इन. कलेक्ट द हैंड इन, हैंड इन योर होमवर्क 20th नंबर पे रहेगा. विजया मैम भी आ गए आज. वेरी गुड. मुझे अनेक चीजें खरीदनी है. हम जनरल स्टोर पे जाते हैं तो यही कहते हैं मुझे अनेक चीजें खरीदनी है. तो खरीदने का मतलब है कि या तो मजबूरी हो सकती है या फिर आपकी इच्छा हो सकती है. तो जब मजबूरी होती है तो हम यूज करते हैं हैव टू. क्या यूज करते हैं? हैव टू. Have to. तो अब मुझे खरीदनी पड़ती है तो बोलेंगे आई हैव टू परचेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीजें खरीदनी है. प्लीज नोट देम. आप उन्हें नोट कर लीजिए. इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. आपके लिए आसान रहेगा. तो कन्वीनियंट क्या होगा? सुविधाजनक रहेगा, आसान रहेगा. तो मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है. प्लीज नोट देम, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. कैसे कहेंगे? आई हैव टू परचेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई हैव टू Will परचेज लॉट ऑफ थिंग्स। purchase of lot of प्लीज things. नोट देम, प्लीज Please नोट not. देम, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. इट It विल will बी be कन्वीनियंट फॉर यू। वेरी गुड. अब ये कन्वीनियंट क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही वो जाएगा फिर आप वापस बताओगे कि चलो ये भी दो, फिर वापस वो तौल के लेके आएगा, फिर बोलेगा ये भी दो. तो वो परेशान हो जाएगा आते जाते. एक साथ आप उसको लिस्ट दे दोगे तो वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को सेलेक्ट करके ले आएगा और उसे पता है कि हमारी दुकान में कौन सी चीज़ कहाँ है. तो दुकानदार कहता है ओके सर, ओके सर, टेल मी, प्लीज मेक देम नोटेड. आप उन्हें नोट करा दीजिए. या तो कहेंगे प्लीज टेल मी, या फिर बोलेंगे मेक देम नोटेड. मेक देम अब देखो इनको नोटेड। क्या क्या चाहिए. धारा मस्टर्ड ऑयल 1 kg. केक्स ऑफ पियर सोप. तो साबुन की जो बट्टी होती है उसे हम बोलेंगे केक. सो केक ऑफ पियर सोप, केक ऑफ रिन सोप, क्लैरिफाइड take of बटर. हाँ, केक, CAKE, केक. तो ये जो साबुन जितनी मोटी होती है तो वो केक ही होता है. तो केक ऑफ शॉप. तो पियर्स कंपनी का नाम है तो हम बोलेंगे केक ऑफ पियर शॉप. केक ऑफ सॉरी take. रिन शॉप, 2 केक्स ऑफ रिन शॉप. ऐसे ही क्लैरिफाइड बटर. सो क्लैरिफाइड बटर. फिर ये कितना चाहिए? 1.5, 1.5 सॉरी 1/2 kg. ऐसे ही 5वें नंबर पे चाहिए बटर, 50 ग्राम्स. तो बटर को हम मक्खन बोलेंगे. चीज, चीज को पनीर कहेंगे. तो ये 1/4 kg या 1/4 kg. Hmm. बटर मिल्क, थोड़ा सा छाछ का पैकेट चाहिए, 1 पैकेट. शैम्पू 1 बोतल, नाम भी बता दिया सनसिल्क. फिर है फिनॉल. सो फिनॉल चाहिए 1 बोतल. ब्रूम मेड ऑफ रिब्स, नारियल का झाड़ू चाहिए. कौन सा है? ब्रूम मेड ऑफ रिब्स ऑफ कोकोनट लीव्स.
रिब्स ऑफ कोकोनट लीव्स। ऐसे ही लहर कंपनी के कुरकुरे चाहिए 1 पैकेट। 1. Yes. So this is the list. Dhara mustard oil 1 kg, cake of pear shop 2, cake of rinse shop 2, clarified butter half kg, butter 50 grams, cheese 1/4 kg या फिर quarter kg, buttermilk 1 packet, shampoo Sunsilk 1 bottle, phenol 1 bottle, broom made of ribs of coconut leaves 1 एंड लहर कुरकुरे 1 पैकेट। तो इतना सामान आप मुझे दे दीजिए। दैट्स ऑल, बस हो गया। प्लीज कैलकुलेट द प्राइस, और इनके प्राइस भी कैलकुलेट कर दीजिए। टोटल प्राइस विल बी ₹405, 405 रुपए होंगे। टोटल प्राइस विल बी ₹405। ओके, टेक द मनी, पैसे ले लीजिए। थैंक्स, विजिट अगेन प्लीज, धन्यवाद, फिर से आएगा। इस तरीके से हम कहाँ जाते हैं? नॉर्मली जनरल स्टोर पे जाते हैं। तो इस तरह से लिस्ट लेके जाएं तो काम करना बड़ा आसान हो जाता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड वर्क। आर यू गेटिंग? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। Got it. ऐसे ही हमने एक दिन क्लास में देखा था कि यदि हम कहाँ जाएं, ग्रोसरी शॉप में जाएं, तो वहां के लिए भी हम कह सकते हैं कि आपके पास ये चीजें हैं क्या? डू यू हैव अ फाइन वैरायटी ऑफ राइस? आपके पास बढ़िया किस्म का चावल है? डू यू हैव अ फाइन वैरायटी, फाइन का मतलब अच्छी, ऑफ राइस? यस सर, वी हैव बासमती राइस। हाँ जी, हमारे पास बासमती राइस है। दैट इज बॉइल्ड और रो राइस। ये कच्चे हैं या फिर बॉइल्ड है? सो बॉइल्ड का मतलब उबले हुए हैं, और रो राइस का मतलब कच्चे राइस। इज दैट बॉइल्ड और रो राइस? डायरेक्ट भी कह सकते हैं, बोथ वी हैव, या फिर कह सकते हैं वी हैव बोथ। व्हाट इज द रेट ऑफ बॉइल्ड बासमती? ₹40 अ केजी, 40 रुपए पर किलो। ओके, गिव मी 20 केजी, आप मुझे 20 केजी दे दीजिए। एनीथिंग एल्स सर? और कुछ चाहिए? डू यू वांट एनीथिंग एल्स सर? दोनों तरीके से आप पूछ सकते हो, एनीथिंग एल्स या फिर डू यू वांट एनीथिंग एल्स। व्हाट काइंड ऑफ फ्लोर डू यू हैव? आपके पास आटा कौन सा है? लोकली मिल ग्राइंडेड और ब्रॉड फ्रॉम फार अवे प्लेसेस? यहाँ पास का ही लोकली मिल ग्राइंडेड है, या फिर पास द फार अवे प्लेसेस कहीं दूर का है? बोथ वी हैव, या फिर वी हैव बोथ। व्हाट इज द रेट ऑफ व्हीटिस मिल ग्राइंडेड फ्लोर? सफेद चक्की आटा कैसे दे रहे हैं? व्हाट इज द रेट ऑफ व्हीटिस मिल ग्राइंडेड फ्लोर या फ्लावर? ₹10 a kg, 10 रुपए किलो है। आजकल आपको नॉर्मली ₹40 a kg मिल जाता है। सो दिस इज हाउ, गिव मी 10 kg, 10 किलो दे दीजिए। ओके सर, डू यू हैव होम डिलीवरी? यस सर, वेयर डू यू लिव? हाँ, क्या आपके पास सामान घर पर पहुंचाने की व्यवस्था है? होम डिलीवरी। डू यू हैव होम डिलीवरी? तो जवाब आया यस सर। वेयर डू यू लिव? आप रहते कहाँ हैं? प्लीज मेक योर एड्रेस नोटेड, आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए या एड्रेस नोट करवा दीजिए। आई लिव नियर बाई, या फिर बोलेंगे क्लोज बाई। आई लिव क्लोज बाई। माई एड्रेस इज 15 जोनाली पाथ। ओके, यू मेक द पेमेंट, आप पैसे दे दीजिए। मेक द पेमेंट। वी आर जस्ट सेंडिंग द डिलीवरी बॉय टू योर हाउस, हम डिलीवरी बॉय को आपके घर भेज देते हैं या भिजवा देते हैं। थैंक यू। इस तरीके से करके हम कहीं भी जनरल स्टोर पे जाते हैं तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं। कहीं कोई दिक्कत आई आपको? No, sir. नो। अब हम कुछ No, sir. वर्ड देखते हैं। सो बीमारियां एवं शारीरिक दशाएं, तो इनको हम एलिमेंट्स या डिजीज एंड बॉडी कंडीशंस भी कहते हैं। तो पहला है हाइड्रोसिल। दूसरी जो बीमारी है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मीन्स Digestion. बदहजमी या अजीर्ण। ब्लाइंडनेस, अंधापन। Plain. शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम अल्प दृष्टि या थोड़ी दूर तक ही देख पाना कहलाता है शॉर्ट साइटेडनेस। और बीमारी का नाम है मायोपिया। एसिडिटी, अम्ल पित्त हो जाना।
डायरिया, अतिसार या दस्त हो जाना। सिफिलिस, लूज मोशन। हाँ, आंतशक या गर्मी लग जाना सिफिलिस कहलाएगी, सिफिलिस। आंत का उतर जाना हर्निया कहलाता है। एक्जिमा, छाजन, उकवत, एक्जिमा। वोमिटिंग, उल्टी आना, जिसको इसमें लिख रखा है के करना। जॉन्डिस, कामला या पीलिया बीमारी है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस के बाद में है मम्स, टाइफस, काला ज्वर टाइफस कहलाता है, रेड टाइफस, येलो टाइफस, ऐसे ही ब्लैक टाइफस हो गया तो टाइफस ही बोलेंगे इसको, काला ज्वर। ऐसे ही काना आदमी होता है उसको बोलते हैं वन आइड। हंच वन आइड। हाँ, वन आइड, एक ही आंख होती है तो उसको काना भी कह सकते हैं, एक आंख वाला भी कह सकते हैं। कुबड़ा, जिसके पीछे कुछ निकला हुआ भाग रहता है तो उसको बोलते हैं हंचबैक। एक बीमारी है लिप्रोसी,